Hello dear student, welcome to my YouTube channel Infinity Pharma. So in this video lecture we will discuss about the definition and classification of dispersed system from the subject physical pharmaceutics second, that is in number unit first, and in that chapter number 1, that is the definition and classification of dispersed system. So from today onwards we will discuss the complete syllabus of physical pharmaceutics second from unit first to unit fifth. In that first unit is there, that is the colloidal dispersion. So in that first unit is the colloidal dispersion. In that we will discuss all the related point related to the colloidal dispersion. So in this video lecture we will discuss about the definition and classification of dispersed system. So first of all, let's discuss the basic things that might be required to understand the upcoming content from this colloidal dispersion. So go to the basic content of this unit. So in that mainly the it focus on the solution. So all of you know about the solution. So what is solution? Solution is the combination of solute plus solvent. Okay, जैसे कि हम 10 से स्टडी करते आए कि व्हाट इज सोल्यूशन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ये जो सोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो रहते हैं दैट माइट बी स्मॉलर इन साइज, राइट. Take the example. This is the example. In that, take the sugar will be added into the water, that is solvent. इसमें क्या हो गया हमारा water, and इसमें जो solute particle जो रहेंगे इसमें क्या है, sugar particles, right. When we add the sugar particles into that water, that is solvent, it will completely dissolve in that solvent, right. It will be completely dissolved in that solvent, that is in water. Okay. एंड दिस थिंग ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी. सो मेनली इसमें जो क्या होते हैं, इसमें टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो कौन से टू टाइप्स है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल है जो सॉल्यूशन जो रहते हैं हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो रहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन. ओके, दीज आर द होमोजीनियस सॉल्यूशन. एंड जो सेकंड सॉल्यूशन के जो टाइप है वो है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. ये जो टाइप से क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल है होमोजीनियस एंड सेकंड है हेट्रो. होमो मीन्स व्हाट इज होमो? Homo means same. And what is hetero? Hetero क्या है? Hetero means different or two phases can be occur in that solution. So जब हम definition जो देखते हैं homogeneous solution की, क्या है definition? Having the uniform composition. Focus on that. That is the uniform composition and properties throughout the solution. इसमें क्या रहते हैं इस solution में? Consider this is the होमोजीनियस सॉल्यूशन. ओके, ये जो हमने एग्जांपल अभी देखा है वो क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन. क्या है इसमें जो शुगर पार्टिकल्स जो है क्या है, प्रॉपरली डिसॉल्व इन दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन दैट वाटर. ओके, मींस इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एंड जो उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी थ्रू आउट सॉल्यूशन वो क्या है, सेम है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट homogeneous solution, that is having the only one layer of solute particle and solvent particle is there. So इसमें जो रिवर्स केस होंगे कौन से होंगे, रिवर्स केस इसमें क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. हेट्रो मींस डिफरेंट. सो टू लेयर्स माइट बी ऑकर इन दैट सॉल्यूशन. इसमें क्या होंगे, जो टू लेयर्स हमको क्या है ऑब्जर्व करने दिखेंगे इसमें. सो उस सॉल्यूशन को हम क्या बताएंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. मींस टू डिफरेंट लेयर्स कैन बी ऑकर इन दैट सॉल्यूशन. सो इसका डिफाइन क्या होगा, the solution which having the solution which doesn't having the uniform composition in that solution, and जो properties उसकी रहेंगे वो क्या होंगी, अलग होंगी. okay, does not having the uniform composition. okay, homogeneous means क्या हो गया, having the uniform composition, having the uniform composition. And what is heterogeneous? Having the different properties or not having the same properties. ओके, और इसका हम एग्जांपल देख जो कंसिडर करेंगे, इसमें क्या होगा, जो हमारे जो चॉक के पार्टिकल्स जो रहते हैं, डस्ट पार्टिकल, राइट. जब हम डस्ट पार्टिकल्स वाटर में ऐड करेंगे उस वक्त क्या होगा, ये कंप्लीटली डिजोल्व होंगे सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट लाइक वाटर में नहीं होंगे. सो इट इज द heterogeneous solution. This dust particle cannot dissolve properly in that solvent molecule. Okay, these are the dust particle,
and this dust particle cannot be dissolved properly in this solvent like water molecule. So this is the heterogeneous solution. And when we talk about the homogeneous solution, when sugar particles can be added to the water, it completely dissolve in that solvent molecule. So this is the homogeneous solution. इसमें क्या होगा, having the uniform composition and properties throughout the solution, having the uniform composition and properties throughout the solution. So these are the basic things that might be required for the understand the colloidal dispersion. So इसमें क्या है, colloidal dispersion. So focus on mainly on the that topic, that is dispersion. So what is meant by dispersion? So what is dispersion? When you talk about the colloidal dispersion, focus on this dispersion. डिस्पर्शन जो होता है वो प्रसार. ओके, डिस्पर्शन को हम क्या कह सकते हैं, प्रसार. सो जो कोलाइडल और सोल्यूट पार्टिकल्स जो हम सॉल्यूशन में देखते हैं उसको वो क्या होते हैं, माइट बी फ्लोइंग इन दैट सॉल्वेंट पार्टिकल्स. ओके, अभी हमने क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. ओके, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, दैट इज द combination of solute plus solvent. So what is solute? What is solute? It also can be defined as dispersed phase. Okay, इसको हम और क्या कह सकते हैं, that is dispersed phase. Okay, and जो solvent particles जो रहते हैं, solvent particles इसमें हम अभी स्टडी किए हैं, उसको हम बोलेंगे dispersion medium. उसको क्या हम बोलेंगे, dispersion medium. अभी मैंने क्या बताया, what is solute? Solute is the dispersed phase. and अभी मैंने क्या बताया, सॉल्वेंट उसको मैंने क्या नाम दिया, डिस्पर्शन मीडियम. सो फोकस ऑन दिस डायग्राम, दैट इज disperse phase and dispersion medium. I will also it called as disperse phase, also called as solute. Okay, disperse phase also called as solute, and dispersion medium it is also called as solvent. Okay, mainly understand these things because it is important. So अभी इसको याद कैसे रखेंगे हम, डिस्पर्शन मीडियम. सो ये जो मीडियम रहते हैं वो लार्जर क्वांटिटी में रहते हैं, और लार्जर क्वांटिटी में सॉल्यूशन में हमेशा क्या रहता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, राइट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट फेज. ओके, एंड जो फेज होता है इन दैट सॉल्यूशन वो कैसा रहता है, कंटिन्यूअस फेज, राइट, इट इज द कंटिन्यूअस फेज. एंड फोकस ऑन दिस कंटिन्यूअस फेज in that solvent. It is also called a dispersion medium, and it is the continuous phase. When we focus about the solute particles, it is the dispersed phase, and it is the discontinuous phase. It is not the continuous phase like that solvent particles or dispersion medium. Okay, so these are the things that might be required for to understand the colloidal dispersion. Okay, also इसमें अभी क्या हम जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है इसमें हम अभी क्या फोकस करेंगे, जो डेफिनेशंस रहेंगे, दैट इज जो डेफिनेशंस इसमें रहेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज द लाइक मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन होंगे, उसमें कोलाइडल डिस्पर्शंस होंगे, कोर्स डिस्पर्शंस होंगे. ये सभी डेफिनेशंस हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोलाइडल डिस्पर्शंस डेफिनेशंस हम देख लेते हैं, फिर मूव फॉरवर्ड टू द their general characteristics and their classification of dispersed system. Okay, let's move forward to the definitions. Okay, in that, so what is colloidal dispersion? What is colloidal dispersion? It is the heterogeneous system. Why we call as it is heterogeneous? Because in that solvent molecules in that dispersed phase is there, like इसको हम क्या बोल सकते हैं, that are solute particles. इसको हम क्या बोल सकते हैं, solute particles that disperse in the that dispersion medium. और ये जो रहते हैं हेट्रोजीनियस रहते हैं. सो हमने अभी डेफिनेशंस देख लिए, कौन से, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. होमोजीनियस इसमें हमें एक लेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा. सो ये क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. सो इसमें फर्स्ट वर्ड आ गया हेट्रोजीनियस सिस्टम, इंपॉर्टेंट है. इट इज द हेट्रोजीनियस सिस्टम composed of a dispersion medium. Composed of a dispersion medium. So what is dispersion medium? डिस्पर्शन मीडियम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. एंड अ डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज क्या है, दैट इज सोल्यूट पार्टिकल्स. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन. कोलाइडल डिस्पर्शन, इन दैट द डिस्पर्स्ड फेज इज डिसॉल्व इन दैट डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्शन मीडियम क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट. ओके,
dispersion medium क्या है, solvent. Okay, in that mainly understand these things in this colloidal dispersion. Okay, disperse phase, what is disperse phase, what is dispersion medium. सो मीडियम है लार्ज क्वांटिटी में रहता है, और मीडियम क्या है, सॉल्वेंट. हमारा सोल्यूशन में क्या लार्जर क्वांटिटी में रहता है, सॉल्वेंट. ओके, एंड व्हाट इज सोल्यूट, सोल्यूट इज द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज, अंडरस्टैंड कर लीजिए. ओके, so what is the definition of colloidal dispersion? It is the heterogeneous system composed of dispersion medium and disperse phase. Okay, और इसको हम अभी और एक तरीके से डिफाइन करेंगे, इन दैट डिस्पर्शन वेयर द dispersed phase are distributed uniformly in dispersion medium. जो dispersed phase रहता है हमारा कौन सा, that is solute particles can be distributed uniformly in the dispersion medium. Okay, ये जो रहता है क्या है, definition of colloidal dispersion. Okay, अंडरस्टैंड हो गया. सो देन जो पार्टिकल साइज जो रहते हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल्स और डिस्पर्स फेज हमको इसमें बोलते हैं, दैट इज सोल्यूट पार्टिकल्स. क्या है सोल्यूट पार्टिकल्स और डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्स फेज सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज रेंज रहता है और उसकी साइज जो रहती है, ये जो साइज रहती है उसके इन कोलाइडल डिस्पर्शन क्या है, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर. ओके, most IMP, that is the size range of colloidal dispersion. It is 1 nanometer to 0.5 micrometer. So in some books you will also find that it is 1 micrometer. Okay, but when we refer the reference book like Martin, okay, in that Martin one point is there, that is the particle size range of colloidal dispersion is 1 nanometer to 0.5 micrometer. Okay, follow this range for the colloidal dispersion. Okay, 1 nanometer to 0.5 micrometer. Okay, when we talk about the examples of colloidal dispersion, in that one is their milk powder, that is dehydrated milk powder. Second is their glue, starch, gelatin. These are the examples of colloidal dispersion. So these are the point in that colloidal dispersion. So mainly understand what is solution. Understand what is solution. Okay, what is solution, that is the solute plus solvent. Then what is a homogeneous solution, what is heterogeneous solution. Okay, so these are the what is dispersed phase, what is dispersion medium. So ये जो थिंग्स हैं आप क्या कर दिए, मगअप कर लीजिए प्रॉपरली, व्हाट इज डिस्पर्स फेज, व्हाट इज डिस्पर्शन मीडियम. ओके, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, और बहुत इजी टॉपिक है, दैट इज कोलाइडल डिस्पर्शन. सो इसमें हमें क्या पॉइंट याद रखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन जो इसके रहेंगी वो हमें याद रखनी है. देन द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन, ये आपको याद रखना है. देन द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन. ओके, दीज आर द थिंग्स इन दैट माइट बी स्टडी in colloidal dispersion. So let's move forward to the next point. So this is the classification of the dispersed system. Dispersed system का एक classification, dispersed system, and जो classification, it is based on the particle size. It is based upon the particle size. It is the classification. It is based upon the particle size is there. Okay. Sorry. So this is the in that one class is there, that is molecular dispersion, colloidal dispersion, and coarse dispersion is there. So these are the classification जो है डिफाइन किए ऑन बेसिस ऑफ व्हाट क्राइटेरिया, दैट इज पार्टिकल साइज. अब हमने अभी प्रीवियस पार्ट में क्या देख लिया, दैट इज द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन. वो क्या हमने देख लिया, फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर. सो इसमें इससे कम एक होगा और इससे ज्यादा एक होगा. सो इससे कम कौन सा है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन. मीन्स जो पार्टिकल साइज रेंज ऑफ दैट सोलिड पार्टिकल्स के रहेंगे इसमें मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन में, वो क्या होंगे, लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. एंड जो पार्टिकल साइज रहेंगे कोर्स डिस्पर्शन के, वो ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर रहेंगे. सो दिस पार्टिकल साइज रेंज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, these particle size range are very very important, focus on that. So जो कोलाइडल डिस्पर्शन जो है हमारा फर्स्ट यूनिट है. ओके, कोलाइडल डिस्पर्शन हमारा कौन सा है, यूनिट फर्स्ट है. एंड जो कोर्स डिस्पर्शन जो है हमारा यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड. सो मेनली इसमें याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिए, जो मिडल पार्ट जो रहे हमारा यूनिट फर्स्ट है, एंड जो थर्ड है वो हमारा कोर्स डिस्पर्शन है. ये जो सीक्वेंस है
इसको मत चेंज कीजिएगा, बिकॉज व्हेन वी चेंज द सीक्वेंस इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेट्स कंफ्यूजन इसमें आपको क्या हो सकता है। सो जो सीक्वेंस रहेगा मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलाइडल डिस्पर्शन, कोर्स डिस्पर्शन, ओके। So these are the things in that. Then when we talk about the characteristics of the system, characteristics of the dispersed system, ये क्या रहेंगे? तो जो characteristics of the dispersed system है, हम इसको इस चार्ट में देख लेते हैं। जो characteristics जो रहेंगे अभी क्या है, when जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो रहते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स, ओके, ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स कंसिडर कीजिए, हमने इस फॉर्म में देख लिए सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट, ये सोल्यूट पार्टिकल्स है हमारे। अभी हम लैब में क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज करते हैं, लाइक फिल्टर पेपर हम क्या करते हैं लैब में यूज करते हैं, किसके लिए? फॉर द फिल्ट्रेशन, फॉर द फिल्ट्रेशन। देन हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, किसके लिए? माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं टू एनालाइज द पार्टिकल्स, to analyze the smaller particles, okay, to analyze the smaller particles. Then जो diffusion हम study करते हैं, diffusion, so what is diffusion, okay, so what is diffusion, हम इसका definition भी देख लेंगे, what is diffusion। so इसमें हो गया first of all filter, that is filter ability, हम इसका characteristic लिख सकते हैं, filter ability, okay, filter ability। जो then microscope, then diffusion, okay, so these are the characteristic on basis of we define the molecular, collider and coarse dispersion। so mainly देख लेते हैं what is diffusion। so what is diffusion? simply the movement of a solute particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration। ये जो मूवमेंट रहता है ये समझ लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यार, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये एनीथिंग इट इज द मेम्ब्रेन। so movement of the solute particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration। so mainly basically जो higher concentration हम किसको बोल लेते हैं? higher concentration means what is, जिसमें solute particles ज्यादा अमाउंट में हम उसको ऐड करते हैं, वो क्या रहता है हमारा higher concentration। कंसिडर कीजिए, consider the one example that two beakers are there, in that same amount of water is there, okay। इसमें क्या है, हमने water ले लिया और इसमें हमने शुगर पार्टिकल्स ऐड कर लिए, सेम ही फर्स्ट में हमने क्या कर लिया, 500 mg ऑफ शुगर पार्टिकल्स विल बी एडेड टू दैट फर्स्ट ग्लास, 500 mg। सो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है 500 mg है। सेकंड में हम क्या करेंगे, 1 kg ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और शुगर पार्टिकल्स कैन बी एडेड इन दैट बीकर। सो किसमें ज्यादा शुगर पार्टिकल्स के रहेंगे, दैट इज सेकंड सॉल्यूशन। सो ये हमारा क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो गया हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड वाला। सो जो मूवमेंट जो रहेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम सिंपली क्या डिफाइन करते हैं, डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन, सो इसमें क्या रहता है, जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन जो रहेंगे, कोलाइडल डिस्पर्शन, कोर्स डिस्पर्शन, इनकी जो मूवमेंट रहेंगी थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो हम स्टडी करते हैं और उसके लिए हमको डिफ्यूजन स्टडी करना पड़ता है। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द solute particles, that are colloidal particles, from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration, okay। so this is the diffusion। so let's discuss the characteristics of that colloidal dispersion। in that first one, when we talk about the molecular dispersion, okay, when we talk about the molecular dispersion, colloidal dispersion and coarse dispersion, okay, coarse dispersion। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, हमने अभी इसमें क्या स्टडी कर लिया है, पार्टिकल साइज रेंज ऑफ दैट कोलाइडल डिस्पर्शन। इसमें क्या है, हमने पार्टिकल साइज रेंज क्या स्टडी किया, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। इसमें हमने सभी पार्टिकल साइज रेंज हमने स्टडी किए थे। सो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का साइज रेंज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। जो कोर्स डिस्पर्शन का जो साइज है क्या है, ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। जब हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के जो पार्टिकल्स रहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम जो माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, हम 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट जो रहता है हमारा कौन सा माइक्रोस्कोप रहता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप रहता है इसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और सेकंड और जो रहता है हम रेगुलर लैब में जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोल लेते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप।
इसमें क्या डिफरेंस है? अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसका हायर मैग्नीफाइंग और रिजॉल्विंग पावर रहता, क्या रहता है इसमें? हायर मैग्नीफाइंग और हमको इसमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हायर रिजॉल्विंग पावर, हम उसको कह सकते हैं हायर रिजॉल्विंग पावर। और जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप रहते हैं उनका जो रिजॉल्विंग पावर जो रहता है वो कम रहता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपने जब हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन स्टडी करते हैं हम उसमें क्या देख लेते हैं? जो पार्टिकल साइज रेंज है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का वो क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर है। सो ये जो पार्टिकल्स रहते हैं खूब उसमें उसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो ज्यादा स्मॉल रहते हैं, जो इट इज इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज ऑल्सो इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो आप सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स हमको इसमें देखने के लिए मिलता है। Then we talk about the colloidal dispersion. When we talk about the colloidal dispersion, in that it can be visible in electron microscope. ये जो particles जो रहते हैं colloidal dispersion के, ये visible रहते हैं किसमें? In that electron microscope. और जो कोस डिस्पर्शन जो रहते हैं इनके पार्टिकल साइज कैसे रहता? हायर रहता। सो इसके लिए हम इसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी हम इसको इजीली देख सकते हैं। सो इट इज विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। सो इन दैट वे वी विल cover all the properties. Then when we talk about the filterability, that is pass through the ultra filter papers. ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर रहते हैं इनके जो पोर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? इन स्मॉलर वेज में इनके पोर्स रहते हैं। सो also these molecular dispersions can pass through this ultra filter. So pass these ultra filters. But when we talk about the colloidal dispersions, it is not pass through that ultra filters because इनका जो पार्टिकल साइज रहता है वो क्या रहता है? थोड़ा फार ज्यादा रहता, थोड़ा इसमें क्या रहता है? ज्यादा रहता। और जो कोस डिस्पर्शन का जो पार्टिकल साइज है वो तो इससे भी ज्यादा है। सो इट कैनॉट पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर्स। When we talk about the सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पासिंग, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में रहते हैं उसमें क्या रहते हैं? to attain the equilibrium, when we talk about the diffusion, okay, let's discuss here. This is the semi permeable membrane. So ये जो डिफ्यूजन है दैट इज द मूवमेंट ऑफ हायर पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये किसके लिए होता? टू अटेन द इक्विलिब्रियम। एक बार इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो ये मूवमेंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली इट कैन बी स्टॉप्ड। सो जो फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास भी होंगे और it can pass through that semi-permeable membrane. So it cannot pass through the semi-permeable membrane. जो colloidal dispersion के particles है cannot pass through the semi-permeable membrane. Also these cold dispersion particles cannot pass through the semi-permeable membrane. So undergo rapid diffusion. So हमने अभी देख रहे हैं what is diffusion? The movement of solid particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration. So it undergo rapid diffusion. तो इसमें क्या है? जो कोलाइडल डिस्पर्शन है स्लो डिफ्यूजन इसमें करेंगे और जो कोर डिस्पर्शन है दे डू नॉट डिफ्यूज। सो ये जो मूवमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर लार्जर पार्टिकल साइज। एट लास्ट, so what are the example of molecular dispersion? That is first one, oxygen is there, electrolytes are there, metal alloys are there. Okay, so these are the examples of molecular dispersion. So what are the examples of colloidal dispersion? Like starch, gelatin, milk, glue. And then last one, coarse dispersion, suspensions, emulsions. These are the examples of coarse dispersion. ये जो suspensions और emulsions है हमने already फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर में स्टडी की है। जो पार्टिकल साइज जो रहता है इसमें अभी लार्जर रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ colloidal dispersion on the basis of particle size. So this point here only from that page is there. So take the screenshot of this page because it's important. That is the classification of dispersed system on the basis of their particle size is there. On the basis of particle size is there. Okay, and then so here only are the definitions and their detailed explanation in their basic types of dispersed system. Okay, this dispersed system on the basis of the particle size. Here only the definition is there of the molecular dispersion. Okay, then
their examples are there like uh, air, electrolytes. Okay, first one is air, then electrolytes is there, metal alloys is there, aqueous solution is there. So these are the examples of molecular dispersion. इसमें हमें क्या स्टडी करना है प्रॉपरली, जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो रहते हैं पार्टिकल्स, दीज आर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द solution are known as molecular dispersion, and their size is less than 1 nanometer. Their size is less than 1 nanometer and can pass through the semi-permeable membrane. So these are the points it can be focused on, that molecular dispersion. So let's move forward to the नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोलाइडल डिस्पर्शन. हमने ऑलरेडी ये सभी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए हैं, तो ये सिर्फ ये जो पॉइंट है आपको थ्योरी के लिए दिए हैं. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल द पॉइंट्स. इसमें क्या है, आपको डायग्राम भी देखने के लिए मिल सकते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलाइडल डिस्पर्शन एंड कोर्स डिस्पर्शन. जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन जो आप देख सकते हैं, उनका पार्टिकल साइज कैसा है, इट कैन बी स्मॉल एज कम्पेयर टू द कोलाइडल डिस्पर्शन, and the particle size of colloidal dispersion is small as compared to the coarse dispersion. Okay, जो particle size range रहेगा from molecular dispersion to the coarse dispersion in larger way. Okay, take the screenshot of these notes, it can be helpful for your semester examination. Okay, and this is the coarse dispersion and their characteristics. Okay, सो अभी हमने क्या देख लिया, द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज. ये जो बी पॉइंट है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, हमने अभी स्टडी कर लिया. सो दिस इज द चार्ट दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द basis on the disperse phase and dispersion medium. All of you know about the disperse phase and dispersion medium. So what is disperse phase? That is the solute particles, and what is dispersion medium? This is the solid molecules. So ये जो सिस्टम है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हमने इसमें क्या कर लिया, अभी डिस्पोज फेज जो रहेंगे हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड लेंगे, देन लिक्विड लेंगे, देन गैस लेंगे. सिमिलरली हम सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, देन सॉलिड एंड लिक्विड. इसमें देन डिस्पर्शन मीडियम जो हम यूज करेंगे, सॉलिड इन सॉलिड कॉम्बिनेशन इज देयर, देन लिक्विड इन सॉलिड कॉम्बिनेशन, गैस इन सॉलिड कॉम्बिनेशन. ओके, जो फर्स्ट थ्री रहेंगे हम सॉलिड ले लेंगे, then liquid and then gas. So in that way we will find the solutions of that dispersed system. Okay, first of all इसमें simply क्या है, 1 2 3 solid liquid gas, then solid liquid gas, then solid liquid, then solid solid solid. Okay, first 3 solid, then liquid liquid and then gas gas. Gas in gas is not formed because homogeneous solution is formed. Gas in gas is not formed. Gas in gas, it is not found because homogeneous solution can be occur. Then इसमें क्या है, examples हमने study कर लिए हैं, that is when solid in solid is there, that is solid soles are formed. When liquid in solid is there, then gels are formed. So in this way liquid is liquid हमने अभी already study किया, emulsions are formed. Okay, so in this way this is the name of the system and their examples. Okay, note these all the points because it's important for the सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसमें क्या है अभी, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. एंड जो हमने पहले स्टडी किया है, कौन सा चार्ट, जो फर्स्ट चार्ट. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज. ये जो टू क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. And this is the next point, that is the general characteristic of the dispersed system, and this we will discuss in the our next lecture, that is lecture number 2. So thank you all of you. So study well and properly for the upcoming semester, and this is our first lecture on the physical pharmaceutics second, that is definition and classification of dispersed system. और इसमें हमने क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया किसके, जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलाइडल एंड कोर्स डिस्पर्शन के हमने डेफिनेशन देख लिए. एंड इन क्लासिफिकेशन हमने 2 क्लासिफिकेशन देख लिए मेनली. कौन से, फर्स्ट वन दैट इज बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज, एंड सेकंड वन बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. जो 2 चार्ट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे. एंड इन लास्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सो बने रहिएगा हमारे साथ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.